Hi students. In my previous lecture on IPC, we were on culpable homicide. We had started body offences. Chapter 16 of IPC deals with offences against human body. The highest offence against a human body is causing death. Now causing death बहुत तरीके से हो सकता है. Causing death can be culpable homicide. Causing death can be homicide which is excusable, causing death which is justifiable, causing death by negligence, causing death for dowry purposes, causing death by abetment, causing self-death, suicide, वगैरह वगैरह. We are now dealing with what we call culpable homicide. I told you that homicide becomes culpable only if it falls under section 299. All homicides are not culpable. As I told you, there are lawful and unlawful homicides. Unlawful homicide, where a homicide will be punishable, is what we call a culpable homicide. In my last lectures, we saw that culpable homicide has two aspects. Whoever causes death with a desire to cause death. The desire to cause death can be divided into two parts. Extreme desire to cause death and less desire to cause death. But desire is there. In other words, intention is there. Where there is an extreme desire to cause death, I call it culpable homicide of the first degree. Where there is desire but not an extreme desire, there it is called culpable homicide of the second degree. Where there is no desire but there is foreseeability of consequences that death may be caused, is culpable homicide of the third degree. We started reading the section last time. Each word carries its own meaning and own weight. Whoever causes death, in fact, whoever causes पे हम पहला लेक्चर में थे. Whoever causes को मैंने different parts में divide किया. The connection between the accused and the resultant death must be established. और मोती सिंह का उसमें बहुत important case था. Secondly, the cause must not be too remote. Remoteness of a cause. Thirdly, where the cause is concurrent. And fourthly, where death is caused inadvertently, but with an intention to kill somebody, or death is caused inadvertently without any intention to kill anybody. पूरा लेक्चर था हमारा सिर्फ एक वर्ड पे, whoever causes. I hope all my students are clear on that. The next word is death. So let's now dissect the word death. Whoever causes death. The word death has been defined in IPC in section 46. Death denotes the death of a human being. Death appears death of a human being. और इसके ऊपर आ जाओ section 45 में life. Life means life of a human being. So 45 defines life and 46 defines death. Life of a human being. So that means death word cannot be used with any animal.
आईपीसी में जब भी वर्ड डेथ यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए होगा। In other words, whoever causes death of a human being means that the word death, since it pertains only to a human being, there can be no transfer of malice from a human being to an animal or from an animal to a human being because of the word death. Because transfer of malice of death, where my intention is to cause death, and death only pertains to human beings. तो जहां पे मैंने एक कुत्ते को गोली मारी क्योंकि वो मुझे बहुत भौंकता था और गोली रिकोशे होके किसी इंसान को लग गई, आई हैड इंटेंशन टू कॉज डेथ वर्ड नहीं यूज कर सकता मैं कुत्ते के लिए। I had an intention to kill, not intention to cause death. So death word सिर्फ इंसानों के लिए है, इसीलिए ट्रांसफर ऑफ मैलिस इंसानों से इंसानों पे हो सकता है, जानवरों से इंसान पे या इंसानों से जानवरों पे नहीं हो सकता। बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आ गए। मैं एक जंगल में हूं, बीहड़ जंगल है, वहां पे मैंने एक जंगली जानवर को गोली मारी, अननोन टू मी एंड कंप्लीटली अनअवेयर, कोई नॉलेज नहीं थी। उस बीहड़ जंगल में कोई इंसान था, उसको गोली लग गई। There is no transfer of malice. Now, but I have caused death. But was there an intention to cause death? No. Was there a desire to cause death of that man? I don't even know him. No. Was there a knowledge to do? Was there foreseeability of consequences? No. Now, जंगल है, बीहड़ जंगल है, डेंस जंगल है, जहां कोई आदमी आता ही नहीं है। मैं पागल हूं जो वहां चल पड़ा शिकार करने, और मेरे जैसे पागल नहीं है। वहां पे नेग्लिजेंस भी नहीं है। आई ऑट टू हैव नोन, सपने में भी नहीं सोच सकता था इतने डेंस जंगल में इंसान होगा। कभी आप जाओ ना ऐसे जंगल, आप सोच रहे हो ऐसे जंगल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैंने एज अ पुलिसमैन देखे हैं। गो टू छत्तीसगढ़ के जंगल, या और नीचे चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, केरला में चले जाओ, इतने डेंस जंगल होते हैं, आप खो जाते हो जंगल में। इनफैक्ट इन वन ऑफ माई sojourns there, I got lost. और मैं बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि वहां बहुत सारे किंग कोबरास भी थे और 2-3 मुझे दिख गए थे। तो मैंने कहा आज तो यहीं, अब वहां ऐसी जगह पे मैंने गोली चलाई किसी जानवर पे और इंसान को लग गई, ये तो इवन नेग्लिजेंट भी नहीं है। अब ये हम एक्सीडेंट में ले सकते हैं, बट अगर यही गोली मैंने एक कुत्ते पे चलाई चंडीगढ़ में, जहां डेंसली पॉपुलेटेड है, अब ठीक है, आई हैव नो इंटेंशन, माई इंटेंशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, माई नॉलेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि नॉलेज या इंटेंशन टू कॉज डेथ of a dog cannot be transferred to a man. But now it is a case of negligence, rashness. अब ये इसलिए 304A में जाएगा। सिमिलरली अब कोई भी केस ले लो जो हमने अब इतने डिस्कस किए हैं, पुनैया फतेह मियां, उसने बोला सांप सपेरा था, उसने कहा सांप का डर हटाना है तो कोबरे का मुंह खोल के उसमें डालो। अंडर मिसकंसेप्शन
उसके शिष्यों ने कंसेंट दे दी कि ठीक है हम कर लेते. They followed him. Died. Was there a desire that he should kill? क्या डिजायर थी सपेरे की कि मर जाए? नहीं, उसके शिष्य थे. क्या फोर्सिएबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस था? नहीं, उसको जेन्युइन नहीं लगता था सांप नहीं काट सकता, उसके हमने फैंग्स रिमूव कर दिए. बट ही ऑट टू हैव नोन सांप है, कोबरा है, चांसेस हैं कि अगर थोड़ा सा भी उसका फैंग बच गया तो वो डस लेगा. हेंस it is not to be totally pardoned. Hence it is a case of 304A. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है हमारी? क्या मेरी डिजायर है? क्या मेरी फोर्सिएबिलिटी है? क्या मुझे पता है कि ये मर सकता है? ये दो मेन चीजें हैं सेक्शन 299 की. एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी बेयर एक्ट में दिया हुआ है डेथ के ऊपर. लेट्स सी, इलस्ट्रेशन पे जाते हैं. इलस्ट्रेशन पे जाते हैं. इलस्ट्रेशन सी. A by shooting at a fowl. Fowl basically means एक मुर्गी. A by shooting at a fowl with an intent to cause death. नहीं लिखा है, मैकॉले है ये. With an intent to kill. Really, I am very worried कि ये नई आईपीसी लिख रहे हैं. मेरे तो टेंशन से बुरा हाल है कि ये कैसे लिख सकते हैं इतनी अच्छी. हमने एक देखा था ना वो सेक्शन 100 में जो मॉडर्न डे में कॉलेज ने लिखा है, देख लिया था ना हमने कितनी गलती थी उसमें. He has not used the word with an intention to cause death, because death word section 46 only death of a human being है. So A by shooting at a fowl with an intent to kill and steal it. चोरी करने के नियत से उसने एक मुर्गी पे गोली मारी, उसको मार के उठा के ले जाने के लिए. Kills B, who is behind a bush. A not knowing that he was there. झाड़ी के पीछे B था, A को नहीं पता था B वहां है. Here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide. चाहे वो चोरी कर रहा था, मुर्गी को मार रहा था चोरी करने की नियत से, फिर भी ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है. Why? As he did not intend to kill B. There was no desire to kill B or to cause death by doing an act which he knew was likely to cause death. ना उसको foreseeability of consequences था, ना उसका desire था B के साथ. So culpable homicide नहीं है, despite the fact that it was an unlawful act. क्वेश्चन ये उठता है, फिर ये क्या है? अब अगर ये बी ऐसी जगह था जहां पे ही ought to have known कि यहां इंसान हो सकते हैं, तो वहां पे he will go to 304A. सपोज कोई एक पार्क है, पार्क के अंदर ये मुर्गी चोरी करने कहीं चला गया, आसपास पार्क है, लोग घूमते हैं, या जहां मुर्गी चोरी कर रहे हैं साथ ही पार्क है, वहां बुशेस हैं, वहां लोग आते जाते रहते हैं. नाउ इट इज अ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट. ही ऑट टू हैव नोन. बट यहां पे हमें कुछ क्लियर नहीं किया गया. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हमें खुद इस चीज को एग्जाम में क्लियर करना है. Now the question arises, is it an accident? In an accident, it should be a lawful act by lawful means.
It is a lawful act by lawful means. But then we've already read Macaulay where the pickpocket puts his hand into the pocket of the passerby and thereby the gun goes off. सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हम यहां. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन क्यों आता है, बहुत सारे चीजें खोल देता है, पेंडोरास बॉक्स खोल देता है ये इलस्ट्रेशन. तो जहां पे मैंने फाउल को मारने की नियत से उस पर गोली चलाई, देयर इज नो कॉजल कनेक्शन बिटवीन द एक्ट एंड द रिजल्टेंट हार्म, टू कोट मैकॉले. Hence, this cannot be taken. Now, this can be taken as merely attempt to steal, जैसा कि उस pickpocket के साथ हुआ था. I hope everybody is clear on this point. So, another connotation of death. So, please remember. Also, I would just like to talk about one more thing. इसके जो illustration A और B हैं वो बड़े important है. A और B पे मैं थोड़ा सा बाद में आता हूं. ट्रांसफर ऑफ मैलिस पे हैं दोनों. I'll come little later. Let me first finish the word death. डेथ का एक और कॉनोटेशन है. अभी हमने देखा कि डेथ क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 46 कैन गो फ्रॉम मैन टू मैन, इंसान टू इंसान. एक और जो कॉनोटेशन आता है डेथ का, death of a child. Child is a human being. Death of a child in the womb is not culpable homicide. एक और connotation word death का, whoever causes death. Death का एक और connotation है हमारे पास. Death of a child in a womb is not culpable homicide. It will not covered by whoever causes death. इसके ऊपर हम चलते हैं explanation 3. Let's go to explanation 3. The causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide. Never forget this line. ये prelims, mains, interview तीनों का है. Death of a child in the womb is not homicide. It can be feticide. It is not homicide. You know, we use different words for children's death. अगर वो womb में है तो वो fetus होता है, तो हम यूज करते हैं feticide. Side means killing. Killing of a fetus, feticide. अगर वो बच्चा पैदा हो गया है और इन्फेंट को हम मारते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड वुड बी कवर्ड बाय कल्पेबल होमिसाइड. जब तक बच्चा वूम्ब में है वो होमिसाइड नहीं कहलाएगा, वो सेक्शन 299 में नहीं आएगा, बशर्ते प्रोवाइडेड अगर बच्चे का एक उंगली भी बाहर आ गई तो माना जाएगा वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन चुका है. लेट्स गो थ्रू एक्सप्लेनेशन 3. द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वूम is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child. अगर बच्चा जिंदा है और उसको मार रहे हो तो वो होमिसाइड है. कब? If any part of that child had been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born. ये जब हम इसकी ड्राफ्ट आईपीसी पढ़ते हैं, मैकॉले राइट्स के इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एक स्ट्रेंज कंट्री है जहां लड़कियों को मार दिया जाता है, बच्चियों को, छोटी बेबीज को. इसीलिए कई बार क्या होता था कि
बच्चा पूरा पैदा नहीं होता था, कई बार ब्रीच बेबी होता है, कई बार पैरों से पहले आ गया, तो पहले पता चल जाता था लड़की है, तो अभी पूरा बच्ची पैदा नहीं हुई इसको मार देते थे, या आधी पता चला ये लड़की है तो पहले ही उसके नाक बंद कर दिया, वो बेचारी बच्ची मर जाती थी। तो अगर एक भी हिस्सा बच्चे का बाहर आ गया तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। इसका मतलब है जब तक वो कंप्लीटली वूम्ब में है तब तक इट विल नॉट बी कल्पेबल होमिसाइड। बट अगर एक भी उसका पार्ट बाहर आ गया, दो द चाइल्ड इज नॉट कंप्लीटली बॉर्न, सिर्फ पैर आ गया या सिर आ गया, व्हाटएवर, देन इट इज कल्पेबल होमिसाइड। और सेकंड है, दो इट मे नॉट हैव ब्रीथ्ड। वो याद है आपने, एक मूवी आई थी, बड़ी हिट मूवी थी, 3 इडियट्स। उसके अंदर वो याद है, बच्चा पैदा होता है सांस नहीं ले रहा होता, इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है उसको उल्टा लटका के डॉक्टर पीछे से मारता है, बच्चा एकदम सांस लेता है, रोता है, रोने का मतलब सांस लेता है। पर कई बार जैसा हमने 3 इडियट्स में देखा था, बहुत देर बच्चा ऑलमोस्ट 30-40 सेकेंड्स नहीं लेता। तो अब अगर 30-40 सेकेंड नहीं ले रहा तो वो कहेंगे तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, तो हमने क्या मारा। इस चीज को कवर कर रहा है ये सेक्शन, कि जहां बच्चा चाहे ब्रीद नहीं कर रहा, या अगर पूरा पैदा नहीं हुआ और आपने उसको मार दिया, तो भी वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, बेसिकली टू सेव द गर्ल चाइल्ड। इसीलिए इसका बैकग्राउंड ही है। So please remember, a child in the womb, in other words a fetus, is not subject to culpable homicide, provided if any part of that fetus is exposed, then it becomes culpable homicide. Or even if the child is born and it is not breathing, the accused cannot claim the benefit that since the child was born dead, so he has not killed. So even if the child is not breathing, will not give you a reason to kill it. You know, एक बहुत अनफॉर्चुनेट है बात कि मैं तो आई हैव रिमेन्ड इन अ स्टेट जहाँ पे काफ़ी फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड होता है, अनफॉर्चुनेटली। यू नो, बच्चा जैसी पैदा होता है, अगर लड़की बच्ची, विच इज़ वेरी वेरी, आई होप अब नहीं होता होगा, मैं जब ज्वाइन किया था सर्विस तब होता था, आई एम श्योर times have changed, and if they have not, it's very very sad for our country. You know, जैसी बच्ची पैदा होती है तो यहाँ तो उसके मुंह के अंदर सैंड डाल देते हैं, तो बेचारी चोक टू डेथ हो जाती है, या अफीम डाल देते हैं। All these are very bad ways and very very brutal and barbaric ways in which we treat the girl child, which is absolutely abhorrible and absolutely not acceptable. Okay, so I hope now you have all clear about the word death. So death का connotation क्या है? A, death 46. B, there is no transfer of malice because of 46. And C, death of a child in a womb का अलग connotation है. It is not culpable homicide. Next word is whoever causes death by doing an act. By doing an act. Act means some movement of muscle. Act can be anything. Poisoning, drowning, striking, shooting, कुछ भी. Any act has to be done. Without doing any act, I cannot cause death. That means the cause of death must be attributable to an act done by me.
An act by me is a must. Act by virtue of section 32 हम पढ़ चुके हैं. Includes omission, illegal omission. Illegal omission. तो एक्ट या इलीगल ओमिशन से अगर मैंने किसी को मारा तो whoever causes death by doing an act includes illegal omission. एक्ट के ऊपर एक बहुत मैकॉले ने एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट आईपीसी उसके पेज 142 पे ही इज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल. कैन स्पीकिंग बी एन एक्ट? क्या कोई आदमी स्पीकिंग से किसी को मार सकता है? सो इज स्पीकिंग एन एक्ट? इसका क्लैरिफिकेशन देता है मैकॉले ऑन पेज 142 इन हिज ड्राफ्ट आईपीसी. ही सेज the reasonable course is to consider speaking as an act and to treat A as guilty of voluntarily causing culpable homicide if by speaking he has voluntarily caused Z's death. ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो उसने ड्राफ्ट आईपीसी में लिखा है 142 पेज पे. वो कहता है अगर उसको पता है कि अगर वो बोले और वो मर सकता है, he knows that the person can die, and he gives an example also. He gives an example. A has aneurysm, ANEURISM. A has aneurysm. Aneurysm basically means abnormal dilation of blood vessels. उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स बहुत डायलेट हो गए होते हैं एंड थोड़ा सा भी कुछ अगर कुछ ऐसा एक्साइटिंग चीज हो जाए, ऐसे एकदम उसको डरा दिया जाए तो ब्लड वेसल्स फट सकते हैं और हैमरेज की वजह से वो मर सकता है. अब उसको पता है कि ए सफरिंग फ्रॉम एन्यूरिज्म और वो सडनली आके ही कम्स एंड शाउट्स योर वाइफ इज डेड. दिस पर्सन गोज इनटू अ शॉक और उसकी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और वो मर जाता है. दिस वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड. सो स्पीकिंग कैन बी एन एक्ट. Whoever causes death by doing an act, provided I know that by speaking I can cause death. जहां मुझे स्पेशल नॉलेज है वो हम आएंगे क्लॉज 2 में आएंगे सेक्शन 300 में. जहां मुझे सब्जेक्टिव नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है कि इसको ये बीमारी है, अगर मैं जोर से इसको कुछ बोलूंगा इसकी नसें फट जाएंगी. नाउ स्पीकिंग कैन बी एन एक्ट. सो स्पीकिंग is an act and it can cause death, and we have, as I said, page 142 of draft IPC. Macaulay has given this example. But at the same time, death by illegal omission is also causing by an act. As I told you, section 32 makes it very clear that act includes omission. What will be an illegal omission? पहला क्वेश्चन ये उठता है. इलीगल ओमिशन हैज बीन डिफाइंड एज एन ओमिशन विच इफ आई डोंट डू इट वुड बी अगेंस्ट लॉ. कई बार क्या होता है कि जहां मेरी एक ड्यूटी आती है, और ये चीज अगेन ड्राफ्ट आईपीसी में पेजेस 138 एंड 139 में मैकॉले क्लियर करता है, बहुत अच्छी तरह हमें बताता है इलीगल ओमिशन क्या होता है. Also, I have the famous case of Om Prakash versus State of Punjab, 1961 Supreme Court, जहां पे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को स्टार्व कर रहा था, उसको खाना नहीं दे रहा था कि मर जाए, मारने की नियत से. It was held as illegal omission. तो कायदे से इलीगल ओमिशन कब बनता है? जब मेरी ड्यूटी है आपकी तरफ और अगर मैं वो ड्यूटी नहीं करता हूं and the person can die, तब उसको illegal omission, whoever causes death by an illegal omission. Only omission will not
only omission will not be illegal omission. Illegal omission होने के लिए there must be a duty, और वो एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, एक लॉफुल ड्यूटी होनी चाहिए. लॉफुल ड्यूटी दो तरह की है. एक जो लॉ एक्सप्रेसली बोलता है, और एक वो जो इंप्लाइडली आपकी ड्यूटी बन जाती है. ये जो मैं बारीकियां बता रहा हूं, ये थैंक्स टू मैकॉले मैंने उसी से सीखी है. When I go to his page 138 and 139, let me read the exact lines from draft IPC. In his draft IPC pages 138 and 139, Macaulay says, I quote, "It is murder if Z was a bed-ridden invalid." Z हिल डुल भी नहीं सकता और बेड पे पड़ा हुआ है. So it is murder. ये क्वेश्चंस आपके ऐसे के ऐसे प्रोपोजिशंस आ जाएंगे, ध्यान रखना. इट इज मर्डर इफ जेड वॉज अ बेड रिडन इनवलीड एंड अ नर्स वॉज हायर्ड टू फीड जेड डजंट डू सो. जेड बेड रिडन है, इनवलीड है, हिल नहीं सकता है. ए को रखा गया है कि वो जेड को फीड करे एज अ नर्स. ए उसको फीड नहीं करता है विद एन इंटेंशन कि वो मर जाए. इट इज मर्डर. मैं कॉल पहला. सेकेंड, नेक्स्ट, इट इज मर्डर. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है अगली जो अब आगे बोल रहा है. It is murder if A was detaining Z in an unlawful confinement. A ने Z को किडनैप किया, एबडक्ट किया और अपने पास wrongful confinement में रख रहा है. Now, moment he keeps him in an unlawful confinement, he contracts a legal obligation to maintain Z. मैं पढ़ता हूं, इसकी एग्जैक्ट लाइंस पढ़ता हूं. इट इज मर्डर इफ ए वॉज डिटेनिंग जेड इन एन अनलॉफुल कंफाइनमेंट एंड हैड दस कॉन्ट्रैक्टेड अ लीगल ऑब्लिगेशन टू फर्निश जेड विद ऑल द नेसेसिटीज. तो जहां मैंने अबडक्ट किया और उसको भूखा बंद कर दिया और वो भूख से मर गया, मर्डर है. Next, it is not murder. Third point, it is not murder if Z is a beggar who has no other claim on A than that of humanity. पर अगर मैंने एक बेगर को, एक क्या कहते हैं बेगर को, मांगने वाला, बेगर को मैंने खाना नहीं दिया और वो मर गया, तो मर्डर नहीं है, तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, क्योंकि मेरी कोई लॉफुल ड्यूटी नहीं है उसको मेंटेन करने की. सो प्लीज रिमेंबर, वेर एवर आई हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एंड आई डोंट, then it is an illegal omission. I have a legal responsibility to maintain my children. I have a legal responsibility to maintain my wife. I have a legal responsibility to maintain my old parents who are unable to maintain themselves. I have even a legal obligation if I have abducted you, I have kidnapped you, I have undertaken an implied legal obligation. This is why these beautiful lines of draft IPC 138, 139 pages are brilliantly clearing the concept of what is an illegal omission. I hope everybody is clear on this. Coming back to our IPC, whoever causes death by doing an act. Now, by doing an act against a person, तो समझ आता है. But suppose
I do an act without having any intention to kill anybody. Can that be culpable homicide? एग्जाम्पल लेते हैं. मुझे दुनिया से नफरत है. बहुत सारे ऐसे बेचारे लोग होते हैं जो बहुत सताए होते हैं दुनिया से. उनको बहुत आई फील सैड फॉर देम. मैंने एज अ पुलिसमैन मैंने मिला हूं ऐसे बहुत लोगों को जिनको पूरी दुनिया से नफरत है. many times I used to arrest them and I used to say, तो मुझे जब उनकी थोड़ी बहुत सेवा हो रही होती थी थाने में तो कह रहे थे मार लो भगवान करे पूरी दुनिया आज एटम बम गिर जाए ऊपर से दूसरी पृथ्वी आके इस पृथ्वी पे सब लोग मर जाएं. नेगेटिव. उनकी भी गलती नहीं है बेचारों का. हालात ऐसे होते हैं कि वो ऐसे बन जाते हैं. तो ऑर्डिनरी आदमी तो ऐसा नहीं होता है. बट चलो ऐसा एक आदमी है दुनिया का सताया हुआ है. इज वेरी अनहैप्पी विद द वर्ल्ड कि वो पैदा ही क्यों हुआ. वो एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है सड़क पे कि जो भी आए उसमें गिरे और मरे. तो बहुत डीप गड्ढा खोदता है और नीचे पत्थर रख देता है कि जो भी आएगा वो उसमें गिरे और वो उसको ढक देता है पत्तों से. कोई बेचारा ऐसे पासरबाई जा रहा होता है वो उसमें गिरता है मर जाता है. अब जब मैंने गड्ढा खोदा था इट इज नॉट अगेंस्ट एनी नोन पर्सन. मैं तो चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया इस गड्ढे में गिर जाए मर जाए. क्या ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस होगा? ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. इसका आंसर हमारे पास आईपीसी में है. लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन 1. A lays sticks and turf over a pit. A lays sticks and turf over a pit. एक बड़ा सा गड्ढा है उसको वो ढक देता है टहनियां डाल के पत्तों से. स्टिक्स से. टर्फ मीन्स घास फूस. With the intention of thereby causing death of whom? Of anybody. Thereby intention of causing death of any person. नामजद नहीं है. कोई भी मरे बस मर जाए. ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैलिस जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर के लिए एक नोन पर्सन से दूसरे पर्सन पे जानी चाहिए कि जी मैं ए को मारना चाहता था बी पे चली गई. ए की भी जरूरत नहीं है. कोई भी इंसान को मारने की नियत ट्रांसफर हो सकती है. इलस्ट्रेशन ए. लेट्स गो बैक. A lays sticks and turfs over a pit with the intention of thereby causing death. मैं अपने words use कर रहा हूं. Of any person, of any unknown person, or with the knowledge that death is likely to be caused. Z. The intention was not to cause death of Z. A जानता भी नहीं है Z को. Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. A has committed the offense of culpable homicide. Act. Whoever causes death by doing an act which is not directed against any specified person also will result in culpable homicide. Illustration B. Transfer of malice. एक और देखते हैं. A knows Z to be behind a bush. B does not know it. A को पता है कि Z उस झाड़ी के पीछे है. B को नहीं पता. A intending to cause or knowing it likely that to cause Z's death induces B to fire into the bush.
B fires and kills Z. Here B may not be guilty of any offense, but A has committed the offense of culpable homicide. बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं, बहुत ध्यान से रखना, यही आएंगे एग्जाम में. ए को पता है बी झाड़ी के पीछे, सॉरी जेड झाड़ी के पीछे. बी को नहीं पता है. ए को पता है छोटी सी पतली सी वॉल है, इसके पीछे जेड है, जेड को मारना चाहता है, पर वो कहता है मैं क्यों मारूं. बी को आता है, कहता है तुम बड़ी गन नया लाया, तेरा एम कैसा है. कहता है बहुत अच्छा. कहता है अच्छा एक काम कर, वो शूट करके दिखा. वो जो पॉइंट है उस पर, उसके पॉइंट के पीछे जेड बैठा है. बी कहता है ये ले, वो गोली मार देता है. जेड मर जाता है. B may not be liable for culpable homicide, but he may be liable for causing death by a rash and negligent act. ये थोड़ा ना आप गोलियां चलाते फिरो हर जगह. You can't be a trigger happy person. So B can be liable for causing rash and negligent act, but he neither had intention nor had foreseeability that Z was there. A is liable for culpable homicide. He had the desire and foreseeability, though B is not liable. ये तीनों illustrations कमाल के illustrations. I do not agree with James Stephen who said weakest part of IPC is section 299 culpable homicide. I think Stephen को समझ नहीं आया. जिसको समझ आ गया उसको weak नहीं लगेगा. Okay. Coming back. Whoever causes death by doing an act. अब यहां पे 3 क्लॉजेस शुरू हो जाते हैं. तीनों क्लॉजेस जैसा कि मैंने शुरू में कहा था अलग अलग नहीं लिखे गए, पर इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में हम क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी का रेफर करते हैं. डीम्ड क्लॉजेस हैं. Whoever causes death by doing an act A with the intention of causing death, with the intention of causing death, with the blatant intention of causing death, with an extreme desire to cause death. So with an intention here, I will use my own phrases. With an extreme intention of causing death. With an intention which is absolutely leaving no room for doubt. Where my intention is so clear. Let's take examples. Examples में हम actually तीनों clauses के बाद लेते हैं, पहले समझते हैं. Which will be the with an intention to cause death? 25 बार चाकू मारा, 6 की 6 गोलियां मार दी. कहां मारा? इंटेंशन कैसे आएगा? कहां मारा? कितनी फोर्स से मारा? जिसको मारा उसकी एज क्या थी? 1000 चीजें देखनी पड़ेंगी. पहला क्लॉज है इंटेंशन. एज ए सेड, व्हाट इज इंटेंशन? Foreseeability of consequences plus desire. Here I will use the word intense desire. What is intention? Foreseeability of consequences plus desire. अब 299 में 2 जगह इंटेंशन है, 1 जगह नॉलेज है. पहला क्लॉज, whoever causes death with an intention to cause death, bus, with an extreme intention to cause death, with an extreme desire to cause death, with an intention which leaves no room for doubt for even any reasonably prudent man that there was no other motive in my mind except to cause death. पहला पार्ट.
Second part. Or within the intention of causing such bodily, with the intention, or clause B, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. Likely. Intention, likely. डीम्ड क्या हो गया पहले क्लॉज में? सफिशिएंट. सो विद एन इंटेंशन जो 100% डेथ करेगी. दूसरे वाले में मेरी डिजायर तो है, पर डिजायर कम है. मारने की नियत है, पर वो नियत 100% मर जाए वैसी नहीं है. देयर आर 3 क्लॉजेस. 2 क्लॉजेस इंटेंशन के हैं, तीसरा क्लॉज नॉलेज का है. ये मैकॉले का ब्रिलियंस है कि उसने इंटेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहले वाले में इंटेंशन इतनी क्लियर है, ब्लैटेंट है, इट लीव्स नो रूम फॉर डाउट. बट दूसरे वाले में डाउट कम्स इन. In second, desire is there, but my act is likely to cause death. It is not definite to cause death. मेरे पास हमारी लड़ाई हो गई. मैंने जिससे लड़ाई हुई वो 80 साल का इंसान है. मैंने एक लाठी उठाई और जोर से उसके एक बारी सिर पे मारी. मौके पे ही वो मर गया. What does it show? कल को वो कहेगा मैंने क्या किया सर, एक लाठी एक ही तो ब्लो मारा था. मुझे दिख रहा था वो 80 साल का इंसान है, और वो ब्लो मैंने इतनी जोर से मारा, जोर मेरी इंटेंशन दिखा रहा है. जोर दिखा रहा है मेरी इंटेंशन. I have hit him with such force that he died on the spot. The fact that I used such brutal force shows my blatant intention, my extreme desire to kill. Suppose he was a young man. There was a rod lying and there was a stick lying. 20 साल का लड़का है. मैंने रॉड उठाई और रॉड उसके सिर पे मारी, और इतनी जोर की मारी कि वो वहीं मर गया. What is the intention? मौके पे मर जाए. बट सपोज मैंने, चाहे वो बूढ़े आदमी को ले लो चाहे यंग आदमी को, मैंने एक स्टिक उठाई, ये इवन अगर रॉड उठाई चलो, पर मैंने इतनी फोर्स से नहीं मारा कि मौके पे ही मर जाए, और एक ही ब्लो मारा. उसका सिर का हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया. अस्पताल में वो 20 दिन पड़ा रहा. 20 दिनों के बाद वो मर गया. अगर मैं चाहता ब्लो इतनी जोर की मारता कि वो वहीं मर जाता, या लाठी थी अगर एक से ज्यादा बार जोर जोर की मारता. बट द फैक्ट कि मैंने एक ही बार मारा, इतनी जोर से नहीं मारा कि मौके पे ही वो उसका ब्रेन बाहर निकल आए, बट मैंने ऐसे मारा कि उसका सिर्फ हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ. यानी कि मैंने मारने की नियत तो है, सिर पे रॉड मार रहा हूं, बट मर जाए, 100% मर जाए, ये मेरी मंशा नहीं है. स्टैब कर रहा हूं उसको, उसके पेट में स्टैब किया, एक बार ही किया. और बार भी तो कर सकता था, हार्ट में मारता. पेट में क्यों मार रहा हूं, हार्ट में मारता, हार्ट में मारता. एक स्टैब, ओनली 1 स्टैब वुंड इन द हार्ट.
Only one stab. But in the heart, direct intention to kill. But in the stomach, in the abdomen, only once. Probably there is no intention definitely to kill. Otherwise, I would have stabbed him 20 times. But suppose एक ही स्टैब उसके abdomen में कर रहा हूं और चाकू को घुमा देता हूं, जो मैंने देखा है एज ए पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल छेद हो जाता है. अब तो मर गया, अब तो नहीं बचने वाला, सब कुछ ग्राइंडर की तरह सब चला जाता है. वही एक्ट, एक ही चाकू है, पर एक चाकू मैंने मार दिया. अब कौन सा चाकू? खुखरी है, इतनी चौड़ी होती है. किचन नाइफ है, छोटा सा है. विल शो मेरी इंटेंशन क्या है, कितनी बार मार रहा हूं, कितने फोर्स से मार रहा हूं, कौन सा हथियार यूज कर रहा हूं, किसके ऊपर कर रहा हूं, कितनी एज का है वो, कितनी फोर्स से कर रहा हूं मैं. इतने सारे को-कॉन्मिटेंट्स आ जाते हैं, इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. So many aspects come in. That is the reason why no two cases are the same. No case can be superimposed on another case. Same अगर ये एक्ट भी हो, एक ही एक्ट है, एक ही डंडा मारा है, कितने फोर्स से मारा अलग, कितनी एज थी अलग, कहां मारा, सोच समझ के मैंने टेम्पोरल रीजन में मारा जो ज्यादा डेंजरस होता है. बहुत सारी चीजें होती हैं. ईच मैटर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ईच केस डिफर्स फ्रॉम केस टू केस. We can never generalize, and this is the reason why culpable homicide is such a complex matter. In the second clause, whoever causes death with an intention of causing such bodily injury. I am intentionally causing such bodily injury, but that bodily injury is not sufficient to cause death. It is merely likely to cause death. It is culpable homicide of the second degree. दो जगह इंटेंशन है, पर इंटेंशंस का भी फर्क है. पहली इंटेंशन ब्लैक है, दूसरी इंटेंशन ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रे है. तो जहां मैंने किसी के हार्ट में चाकू मार रहा हूं, एक ही मार रहा हूं, बट ही डाइज ऑन द स्पॉट, ब्लैक है, तभी तो हार्ट में मार रहा हूं. जहां उसके एब्डोमेन में मार रहा हूं, बच भी सकता है. जहां बच भी सकता है वो क्लॉज 2 में आता है, जहां बच ही नहीं सकता था वो क्लॉज 1 में आता है. ये फर्क है. डिजायर है मर जाए, और बिल्कुल मर जाए, किसी हालत में बचे ना, दूसरे में बच जाए तो बच जाए. ये फर्क है. I hope everybody has understood the depths of these two. The most important in clause 2, word in clause 2 is likely to cause death. So where मेरी चोट जो है वो definite to cause death है, ये देखेंगे, या likely to cause death है, ये देखेंगे. अगर वो definite to cause death है तो वो फिर मर्डर में जाता है. आगे जाके देखेंगे हम, उसकी सजा 302 में जाती है. जहां इंटेंशन है बट डेफिनेट डेथ नहीं है, लाइकली है, वो जाता है क्लॉज 2 में, यानी कि 304 पार्ट 1 में, जिसकी सजा डेथ नहीं है, लाइफ अप टू 10 years. क्यों? अब मेरी इंटेंशन डाइल्यूट हो गई, इंटेंशन डाइल्यूट हो गई, सजा डाइल्यूट हो गई. जितनी काली मंशा उतनी काली सजा.
द डार्कर द इंटेंशन, द मोर स्ट्रिंजेंट द पनिशमेंट। ये बेसिक एस्पेक्ट है। आप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब हम आते हैं क्लॉज 3 पे। और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली, दो चीजें, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। Whoever causes death by doing an act with the knowledge that he is likely to cause death. दो वर्ड्स हैं, knowledge and likely, दोनों डाइल्यूट कर रहे हैं। Knowledge means knowledge to do. Knowledge means many judgments where Supreme Court has clarified. केसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, बहुत है जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई इसको किया है कि नॉलेज क्या होती है। नॉलेज इज फोरसिएबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ डिजायर, देयर इज ऑलवेज ओनली फोरसिएबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस without a desire for those consequences. जहां मैंने केसर सिंह में, जहां मैंने उसको कस्सी से मारना था, मैंने कस्सी उठाई और कस्सी से मारते वक्त कस्सी उल्टी कर दी और उसके जो हत्था होता है, जो डंडा होता है, उससे मारा, जो उसका शार्प पार्ट है उससे नहीं मारा। इसका मतलब है आई हैड नो डिजायर टू किल। नहीं तो कस्सी से मारता, वही मौके पे मर जाता। कस्सी को उल्टा करके एक बार सिर्फ सिर पे मारा, हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ नो डाउट, बट आई डिड नॉट हैव द डिजायर टू किल। वो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, एक एडवोकेट फादर, ये पिक्स अप अ पेपर नाइफ, उसके लड़के, एक ही लड़का है उसका, उसने पेपर नाइफ उठाया और अपने लड़के को मारा। बहस हो गई, कहां मारा? अगर हार्ट में मारा तो देयर वाज अ ब्लैटेंट इंटेंशन टू किल, पर उसने उसके एब्डोमेन में मार दिया, एक बार ही मारा। और वो भी अब कितना मारा, ये भी देखना होता है, कितना मारा, पूरा अंदर डाला, आधा डाला, डिपेंड्स। पूरा मैंने मारा, बार बार मारा, वो अलग हो गया। थोड़ा सा मारा, एकदम मुझे रियलाइज हो गया मैं क्या किया, छोड़ दिया, निकाल लिया, और फिर मैंने उसको फटाफट हॉस्पिटल ले गया। डिजायर नहीं है, नॉलेज है। इसीलिए नॉलेज जहां है और डिजायर नहीं है। अगर मैं ब्लैटेंट इंटेंशन को ब्लैक रखूंगा, क्लॉज 2 को अगर मैं डार्क ग्रे रखूंगा, इसको मैं लाइट ग्रे कलर दूंगा। कई बार एक ऐसा एक्ट हो जाता है जहां डिजायर नहीं है, नॉलेज है, पर मैं डेथ कर पाता हूं, कर देता हूं। सो जहां पे एक वुमन थी, न्यूली जो मदर बनी थी, बेटी को जन्म दिया था, चौथी बेटी हुई थी, हस्बैंड तलवार लेके भाग रहा था, वो औरत बेचारी उस हालत में भी उसको, बच्ची को बचाने के लिए भाग रही थी, उसको कुछ नजर नहीं आया कहां जाऊं। हस्बैंड पीछे आ गया था तलवार लेके, बच्ची को बचाने की नीयत से वो कुएं में छलांग मार गई। उसको पता था हस्बैंड पानी में नहीं आएगा, बच्ची मर गई, उसके हाथ से छूट गई, वो मर गई। नाउ whoever causes death by doing an act, yes, foreseeability थी, मर सकते हैं, फिर भी वो खुद ही। यहां पे अब हम उसको मैक्सिमम सजा देंगे 10 साल और फाइन, 304 पार्ट 2। तो जहां मैं ब्लैटेंट काली इंटेंशन से आ रहा हूं मारने के लिए, 302। जहां में इंटेंशन है, डिजायर है, पर उतनी नहीं है, लाइकली है मेरा एक्ट डेथ कॉज करेगा, श्योर नहीं है, वो 304 पार्ट 1। जहां डिजायर बिल्कुल नहीं है पर फोर्सिएबिलिटी है मुझे कॉन्सिक्वेंसेस के, और मैंने फिर भी वो किया, नाउ इट इज 304 पार्ट 2 विच इज पनिशेबल विद 10 years और फाइन, और फाइन 1 rupee फाइन भी हो सकता है। सो आई होप नाउ एवरीबडी इज क्लियर अबाउट 299 का पहला पार्ट एग्जैक्टली क्या है, कैसे बना है। इसमें अब एक पॉइंट उठेगा
I'll leave it because we have run out of time. एक क्वेश्चन उठेगा कि जहां मैंने किसी को मारा, मैंने सोचा वो मर गया है पर वो मरा नहीं था, और मैंने उसको अपने मारने को छुपाने के लिए मैंने उसको टांग दिया, और वो मरा टांगने से, ना कि मेरे पहले ब्लो से, तो उसका क्या हम हश्र मानेंगे? ये मेरा कल का टॉपिक होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप एवरीबडी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज culpable homicide. We take it up from here. Thank you. God bless.